Hello friends, this person is Siddharth Kumar MC. He's from Kerala. His mobile number is 7510191350. He has been recently recommended for ACC 124 in his second attempt. So congratulations to Siddharth Kumar MC. And he's waiting for his merit as and when it's published, and he is cleared by his medical also. This was his second attempt. This is his photograph after he got recommended. Siddharth Kumar MC. Now when he contacted me, I had asked him a question, Siddharth ko, how useful was the training with AFOSOP? So in reply to that, he gave a very interesting short answer. Sir, in the last attempt, that was his first attempt, in the last attempt, I was not able to get ideas. Because concepts, mental image of tasks were not there. After class, that is after the AFOSOP class, I got the crux and the concept which gave me a good clarity on things. So it talks about clarity. Literally, Pinky enlightened my life. Now, Pinky is a concept that I use in the self-management classes where I conduct a module called MIS of Self. Makan Malik and Kaam Wali wala concept through which you understand the nature of your mind and intellect and how your mind must work as a subservient to intellect. So I use certain concepts. So it's referring to that. And also in structure analysis, I use this term called Pinky that makes the very complex concept very easy to understand. So he's referring to that. Interesting thing is he's talking about clarity. And life में clarity जरूरी है, because अगर clarity ना हो तो efforts तो हम लगाएंगे लेकिन दिशा की गुणवत्ता का पता नहीं चलेगा. So I'm very happy that not only he got recommended, he valued clarity. What I want to say is there are two sides of a coin, and as far as SSB is concerned, the side that you know, this is side that the candidate believe ki SSB is, this is highly distorted because of multiple reasons. Coaching, गलत टाइप के यूट्यूब वीडियोस, एक ऐसी सोच बन गई कि एसएसबी का मतलब है टीएटी डब्ल्यूटी एसआरटी, whereas it is not true. There is another side of the SSB, other side. So the last video उसका नाम भी था other side. I think you will have to take that courage to see the other side of the SSB कि organization क्या समझता है, and you have to see कि coaching or books or crack SSB or your non-recommended candidates or recommended candidates जो आज number 1 बने हुए हैं, what are they showing? There is a difference between reality and the perception of reality. In fact, my research itself was perception management of candidates for improved selection. इस नाम को AFOSOP में YouTube channel में search करना, you'll find that perception management of candidates for improved selection. But कहीं ना कहीं the candidate, there is so much of resistance to change his perception. He wants to live in his comfort zone. उसके कारण सच को देखता है, सच को सुनता है, सच को समझता है, लेकिन सच को मानता नहीं है. That's a challenge. Anyway, I'm talking about service entry. Siddharth is a service entry candidate. I myself a service entry candidate. ACC 62 1989 का SSB में गया हुआ था. सर्विस एंट्री के केस में एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि when you look at our background, most of us come from rural background, from agricultural background, from lower middle class economic family. Our education has been all dhakka bukka. There may be exemptions. Most of us. My father was a Subedar Major, but still I was completely directionless. I was myself a company commander in one of the 6 TTR training center operators का, signals के operator का. Every third, fourth day 2-3 people will put up the application. सर मेरा ट्रेड चेंज कर दो, मुझसे ऑपरेटर की पढ़ाई नहीं हो रही, मुझसे मैकेनिक की पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे सर लाइनमैन बना दो, ड्राइवर बना दो, कुक बना दो, लेकिन ऑपरेटर नहीं करूँगा. बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ प्रेशर द एक्सपीरियंस जब पढ़ाई करना होता है. मतलब दिमाग इस्तेमाल करने में बहुत मुश्किल. दौड़ा दो, दौड़ता रहेगा, गाली देगा, क्रॉस कंट्री कर लेगा, लेकिन दिमाग से पैदल चलता है.
नेचुरली उसी फौज के हम हैं, और फौज का माहौल ऐसा है, बोलते भैया दिमाग लगाओ, तो बोलते दिमाग क्यों लगाया, यू नो। सिपाही को नायक बोले, नायक को हवलदार बोलेगा, हवलदार को सूबेदार बोलेगा, सूबेदार को कंपनी कमांडर बोलेगा, कंपनी कमांडर को 2IC, 2IC को CO, दिस कंटिन्यूस। सो कहीं ना कहीं फौज में आने के बाद आर एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ आर यूजिंग आर इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज कम हो जाता है, अनलेस वी हैव सम अपॉइंटमेंट वेयर दैट इज अ रिक्वायरमेंट, मोस्ट ऑफ अस, एंड वी गेट इनटू सच ए कंफर्ट जोन। पता है काम करो ना करो तनख्वाह मिलेगी, घास कटे ना कटे तनख्वाह मिलेगी, सुबह इज्जत उतरती है, शाम को 2 पैग लाओ इज्जत चढ़ जाता है। वो हमारा एटीट्यूड गड़बड़ हो जाता है। उस एटीट्यूड के साथ जब आप सर्विस सेंट्री वाले जब SSB में जाते हैं तो वहाँ पे भी लगता है ये गोलियाँ खिला के, टिप्स एंड ट्रिक्स खिला के हम निकल जाएंगे। दैट्स अ वेरी वेरी फॉलिसी, एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर, आउट ऑफ सो मेनी अदर रीजंस, इज एक्सट्रीमली पुअर कम्युनिकेशन स्किल सर्विस सेंट्री केस में। If I'm taking this lecture, video lecture, if I cannot communicate, how will I convey what I want to convey? तो इसका जो पहला पॉइंट है 1A का, हमें हेडक्वार्टर का लेटर का है 1A सर्विस सेंट्री कैंडिडेट में, पुअर कम्युनिकेशन स्किल बोथ वर्बल, रिटन एंड नॉन वर्बल। मतलब रिटन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, मतलब कर्मा वाचा मानसा में a service candidate is not able to express that he wants to express. There may be assumptions. Now अगर ऐसे आप जाओगे, why do you want to go there? लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हो, लीडरशिप में बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, वेरी फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप इज इट इज योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर अदर्स। फॉरगेट अबाउट फॉर व्हाट पर्पस। हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर अदर्स व्हेन यू आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर योरसेल्फ? लीडरशिप की शुरुआत होती है स्वयं को पहचान कर। स्वयं का नेतृत्व नहीं कर पाते तो कहाँ तुम सेना का नेतृत्व करोगे? और जो आदमी स्वयं के ऊपर एक छोटा सा बदलाव नहीं ला सकता, वो क्यों 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर लगा के अपनी बेइज्जती करना? इट इज बेटर टू कमांड हेल देन बी अ सर्वेंट इन हेवन। अपने शान से सूबेदार मेजर बनो, और सूबेदार मेजर की औकात देखो कितनी ज़्यादा होती है। यंग लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब, उनके सामने रैंक से दे बड़े होते, बट उनकी चलती है बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर व्हेन यू डोंट हैव कैपेबिलिटी? आइदर बिल्ट इट और बी सेटिस्फाइड वेयर यू वांट टू गो। ये मेरी सोच है और मैं बहुत सख्ती से मानता हूँ इसे। काबिलियत नहीं हो, कुर्सी मिल जाएगी, यू कैनॉट डू जस्टिस। सैल्यूट मिल जाएगा, इज्जत नहीं मिलेगी। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैल्यूट मिलना और इज्जत मिलना? सैल्यूट मिल जाएगा लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत करने के लिए काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत पे काम नहीं करना चाहते हो। लो इंटेलेक्चुअल लेवल एंड नेगेटिव परसेप्शन। बिकॉज ऑफ लो इंटेलेक्चुअल लेवल, कोई भी आपको कोचिंग वाला झुंझुना पकड़ाया था कि इसे बजाओ, ऑफिसर बन जाओगे, तुम झुंझुना बजाते रहते हो। डेड बॉडी का ड्रामा, सुसाइड छुपा दो। तुम्हें पता भी है कि व्हाट लेवल ऑफ डैमेज वी आर डूइंग इन द नेम ऑफ कोचिंग, नहीं पता चलेगा। एनीवे, poor general awareness, time management, stereotyped and coach responses. Stereotype and coach responses. Ram was courageous, cooperative, determined. है ना? उसने NGO खोल दिया, लेटर लिख दिया, कलेक्टर को फंड रिलीज करा के ब्रिज बना देता है। अरे क्या कर रहे हो यार? पुअर जनरल अवेयरनेस। कुएं का मेंढक, कुएं का भी नहीं मेंढक, कुएं के छेद में उल्टा बैठा मेंढक। दैट बैड इट इज। लैक ऑफ इनसाइट, स्वयं को नहीं पहचानता। इनसाइट, बिना स्वयं को पहचाने अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन को गूगल करते हो, रिकमेंडेड कैंडिडेट का लेते हो, कोचिंग के बुक। एक नागपुर का कोचिंग वाले सर बोलते हैं हम तुम्हें ब्रांडेड SD लिखवाएंगे। हाउ कैन यू मेक समबडी राइट ब्रांडेड SD व्हेन ही इज नॉट ब्रांडेड? आपके SD को बदलने से आप नहीं बदलोगे, आप बदलोगे तो आपके SD को बदला जा सकता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो लैक ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस, रिजिडिटी। फिजिकल स्ट्रेस टॉलरेट कर लेते हो, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस ये कौन करेगा? सो देर आर इशूज टू बी एड्रेस। सो पावर ऑफ एक्सप्रेशन का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ योर एबिलिटी टू पुट अक्रॉस योर आइडियाज एडिक्वेटली विथ ईज एंड क्लैरिटी। बड़ा छोटा सा एक लाइन का डेफिनेशन है, बट इट इज़ वेरी वेरी डीप। इट सेज इट इज़ योर एबिलिटी। किसकी एबिलिटी? इस कैंडिडेट की एबिलिटी। ये तुम्हारी क्षमता है। किस चीज़ के लिए? टू पुट अक्रॉस, अपने बात को रखने के लिए। क्या बात को? आइडिया। जब आइडिया होगा ही नहीं तो आइडिया रखोगे कैसे? जब भाषा में पकड़ ही नहीं है तो ये काबिलियत कहाँ से आएगी? सो देयर आर 2 थिंग्स, भाषा की पकड़, पब्लिक स्पीकिंग की काबिलियत, आत्मविश्वास, एंड आइडिया को रख पाने की क्षमता। इट इज द एबिलिटी टू पुट अक्रॉस वंस आइडियाज, और वो भी कैसे? एडिक्वेटली, पर्याप्त मात्रा में। कैसे? आसानी के साथ। और कैसे? क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ। जब आप ही स्पष्ट नहीं होगे तो आपके कम्युनिकेशन में स्पष्टता कहाँ से आएगी? जब आपको अपनी बात समझ में नहीं आता तो आपको अपनी बात कर्मा वाचा मानसा को कैसे समझाओगे?
सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. यूं समझ लो कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अगर वो बंदूक है तो एमुनेशन आइडिया है, कंटेंट है. आपको बंदूक और गोली दोनों चाहिए. भाषा बंदूक है, इट्स योर एबिलिटी, एंड आइडिया ये. आप एक सर्जिकल स्ट्राइक में जा रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि आपका बंदूक में गोली है, फायरिंग पिन है, कुछ नहीं. वास्तव में जब जाते हो 36 बार आप अपने गन को ठीक करोगे, ऑयलिंग करोगे, फुल थ्रू करोगे, गोलियां गिनोगे, एक्स्ट्रा गोलियां लोगे. लेकिन एसएसबी में बिना गोलू बिना बारूद के जा रहे हो. तो वहाँ जाके बोलते हैं सर तो गोली लग गई स्टेज 1 में. फिर बोलते हैं इलाहाबाद इज रिजेक्शन से. इलाहाबाद इज नॉट अ रिजेक्शन सेंटर. मैं तो वहाँ पोस्टेड था 11 SSB में. इलाहाबाद इज अ सिलेक्शन सेंटर. लेकिन वहाँ पे जो कैंडिडेट आते हैं, 5 SSB है, वहाँ पे कैंडिडेट बिना बंदूक बिना गोली के सर्जिकल स्ट्राइक में आते हैं. जब बोलते हैं बताओ तो कुछ नहीं पता. फिर बोलते हैं कि सर इलाहाबाद इज रिजेक्शन. इलाहाबाद इज नॉट अ रिजेक्शन सेंटर. माई ट्रेनिंग मेक्स मी डिजर्विंग टू गेट नॉन रिकमेंडेड. मेरी ट्रेनिंग में खोट है क्योंकि मैं इलाहाबाद के SSS को बेवकूफ़ बनाने गया, उन्होंने जेंटलमैन बना के मुझे ही बेवकूफ़ बना दिया. नो, इलाहाबाद इज़ नॉट अ रिजेक्शन सेंटर. अरे तुमने कोई ठेका ले रखा कि तुम्हें सेलेक्ट करेगा क्योंकि तुम चाहते हो? तुम्हारे चाहने से नहीं होगा. सिद्धार्थ हुआ है सिद्धार्थ के चाहने से नहीं. कर्मा वाचा मानसा में ही वॉज फाउंड एडिक्वेट, ही वॉज क्लियर. तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी ले लेंगे. लेकिन बंदूक और गोली के बिना जाके अपेक्षा करना कि टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के तुम इन्हें बेवकूफ़ बना दोगे. ट्राइट, लग गया तो मैं भी बोल दूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, बट अमूमन लगेगा नहीं क्योंकि DIPR की ट्रेनिंग हम कोचिंग वालों की ट्रेनिंग से बेहतर है. हम कोचिंग वाले अपने आप को गॉड बोलते हैं, लेकिन हमारी औकात आपको हमने बता दिया. अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमारी औकात आपको दिख जाएगा. हम सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने की ट्रेनिंग देते हैं. तो कहाँ के गॉड हुए हम? तो हमारा गॉड होने में बिजनेस इंटरेस्ट है, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा. जब तुम हमारे पास आते हो हमें लक्ष्मी मिलता है, लेकिन क्या तुम्हें हमसे सरस्वती मिलता है? शायद तुम्हें सरस्वती चाहिए ही नहीं, इसलिए हम मलमूत्र पैक करके दे देते हैं. आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम आपको इतनी मीठी छुरी खिलाते हैं ना. हमारे पास आ जाओ, हर घोड़े को गड़ा बनाएंगे. तुम भागते हो. भैया आपकी लक्ष्मी में अगर खोट हो, डिमोनेटाइजेशन से पहले वाला दे दो, हम भगा देंगे. तो आप हमसे क्यों नहीं सरस्वती? मैं सरस्वती दे रहा हूँ, लड़के बोलते भैया बाबू के पास मत जाओ, सरस्वती बेचता है, हमें तो मलमूत्र चाहिए. जाओ फिर मलमूत्र लो. तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा मेरी बातें, क्योंकि मेरी बातों को समझने के लिए बुद्धि में धार चाहिए. एनीवे, सो आप सोच के देखो, आप एक इंटरव्यू में जाते हो. बाकी मानसा में तो चलो वो देखता ही नहीं आपको, GTO आपसे बात नहीं करता. इंटरव्यू में आपसे तो बात करता है. आपको पता है इस बंदे का रैंक, ये मेजर जनरल हो सकता है, ब्रिगेडियर साहब हो सकता है, कर्नल साहब होता है. मेजर जनरल, ये बड़ा कमांडेड अ डिवीजन एंड इज देयर. और तुम इन्हें काटने जा रहे हो, इनको काट के ऑफिसर बनना चाहते हो. तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ. यू कैन नॉट यार, यू कैन नॉट डू दिस थुचुक थुचुक प्राण घटकम एंड इफ यू थिंक कि तुमसे इसको करके निकल जाएगा. इस सोच को SSB कैंडिडेट वालों को चेंज करना पड़ेगा. SSB तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा, तुम्हें बदलना पड़ेगा SSB के मुताबिक. और कोचिंग के दम पर रहोगे. हमें लक्ष्मी आनी चाहिए. इसलिए जनरल साहब भी बांसुरी बजाता मीठी मीठी, और तुम भागते हो क्योंकि जनरल साहब की बांसुरी में इतनी चाशनी घुली हुई है ना, इतनी चाशनी कि भैया चिपक ही जाओगे वहाँ पे जाके. नो, यू हैव टू सी. क्या 5 दिन में कोई आदमी सिग्नेचर कोर्स करके ऑफिसर बन सकता है? जवान की ट्रेनिंग में 6 महीने लगाते. चाशनी घोल के पिला रहे, तुम पी रहे हो यार. तुम थोड़ा देखो, मेरी बातों को सुनो, समझो. मत आओ मेरे पास वही आओ जो अपने आप को बदलना चाहता है. ये टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए नागपुर जाओ, बैंगलोर जाओ, दिल्ली जाओ, गुड़गांव जाओ, बैंगलोर जाओ. मेरे पास नहीं आना. मेरे पास आना है, काम करना पड़ेगा. है हिम्मत तो आओ. बिल्कुल सटीक बताऊंगा और सटीक काम करो. वरना साला टिप्स एंड ट्रिक्स है. तुम एक मेरे जनरल को बेवकूफ़ बनाने जा रहे हो. तुम्हारी औकात देखिए. इट्स नॉट पॉसिबल मेरे भाई. अरे यार 3.6 इज द क्लियरेंस. सो देर इज अ केस टू बी अंडरस्टूड. सो कोचिंग का ये जो तरीका है ना, रट्टा मार के जाना, भैया आपके एक्शन को अपने इंटेंशन के साथ अलाइन करो, तभी इम्पैक्ट आएगा. ये तरीका नहीं है इम्पैक्ट लाने का. 3.6 क्लियरेंस है, फिर भी झुंझुना बजाते हो SSB में जाके. सब झुंझुना लेके जा रहे. ऑफिसर बनना B पॉजिटिव का. झुंझुने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा यार. अपनी काबिलियत को, क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा. आपको
आप ये टेल साइड देख देख के कोचिंग के दिखाए टेल साइड को देख रहे हो, क्रैक एसएसबी के टेल साइड को, लॉन्डो के टेल साइड को देख रहे हो। भैया एसएसबी की नज़र में हेड भी देख लो। तुम्हारी इन हरकतों को एसएसबी किस नज़र से देखता वो मैं दिखा रहा हूँ, आप देखना ही नहीं चाहते। आप बोलते इसे हटाओ सर, इसे हटाओ, हम तो झुंझुना बजाएंगे एसएसबी जाके। बी पॉजिटिव, डेड बॉडी का ड्रामा, कोर क्वालिटी को हाइड कर दो। सोसाइटी झुंझुना है, झुंझुना, झुंझुना बनाते बच्चे। झुंझुना मत बजाओ यार, झुंझुना मत बजाओ। थोड़ा सा समझो सिक्के के दो पहलू। जो तुम दिखाना चाहते हो क्या वास्तव में एसएसबी वही देखना चाहता? जो कोचिंग तुम्हें लपेट लपेट के दे रहा है क्या वही एसएसबी देखना चाह रहा है? झुंझुना बजा रहा हो 3.6, झुंझुना मत बजाओ। यानी भाई आपकी मर्जी है, झुंझुना बजाओ। सिद्धार्थ कुमार एमसी के अंदर एक बात थी जो उसको सबसे डिफरेंट करता था। ये बंदा जब इसने फर्स्ट कॉल किया तो जब तक इसने बताया नहीं कि हमें सर्विस कैंडिडेट, आई थॉट ही मस्ट बी ए CDS और वो वाला था। सच क्लियर कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंट, एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ बात कर रहा था कि सर आई एम सो एंड सो ऐसे, व्हाट आर यू डूइंग सर, आई एम इन आर्मी। ओह, फर्स्ट थिंग मेरा सवाल दिमाग में आया, ये बंदा फौज में कैसे पहुंच गया? होगा कुछ आर्थिक तंगी, घर का, परिवार का रीजन, मैंने पूछा नहीं। And then when he joined, today he's selected. I'm not talking about him because selected. I'm talking because he had the control of language. He knew what was he speaking. He had the control of language. He had the control. He had the content ki adequacy. He had ideas. His awareness, general knowledge, GK, military related knowledge, social issues, Kerala ke issues, defense issues. He was updated. I don't know why. How was he doing it? वो आपको पूछना पड़ेगा. To talk to him was a treat. And actually मेरे दिमाग में उसके बात करने के बाद काफ़ी टाइम तक रहा कि बंदा इतना क्लियर है, पहली बार क्यों नहीं हुआ होगा? नेचुरली क्लैरिटी नहीं था। एंड किस कारण से आया होगा? उसका पर्सनल कारण होगा। ऐसा ही क्यूरियोसिटी जब आपसे बात करेंगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आपसे आना चाहिए कि ये बंदा कैसे इतना बढ़िया है। अरे तुम साले झुंझुना बजाते हो यार, गलत बात। सो वन थिंग दैट आई अप्रिशिएट अबाउट Siddharth Kumar MC was, to train him was very easy because he had an open mind. वो समझना चाहता था चीज़ों को, वो समझ के अपनी कमियों को पहचानना चाहता था, दूर करना चाहता था, and he was willing, he was accepting those things. That was very good. And because of the language clarity, it was a treat to listen to him. As a service candidate, बहुत कम लोग आते हैं ऐसे जो इतना मस्त बोलते थे। अपनी बात को इतना साफ रखना, जो भी गलत सही जो भी है। So I will request you to speak to Siddharth Kumar MC and find out कि उसने अपने आप को कैसे बिल्ड किया। वो भी फौज में आपकी तरह, उसको भी टाइम नहीं मिलता, उसके भी यूनिट के अंदर काम होता होगा। You talk to him about current affairs, national issues, international issues, social issues. He is clear. मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि वो बोले कि सर सॉरी सर आई डोंट नो। He knows something about everything. I think that's a fantastic thing. Language control, उसके कारण कॉन्फिडेंस, बोल पाना, इनिशिएटिव, बहुत कुछ था। आप भी करो ना इसको, आप बात करो, सिद्धार्थ से पूछो क्या सोर्स है, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, सोशल इश्यूज, स्पोर्ट्स, मिलिट्री रिलेटेड, अदर मिसलेनियस इश्यूज, कोविड, साउथ चाइना सी, गलवान वैली, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका इम्प्लीकेशन, ये वो सब कुछ, किसान विड्रॉल, फार्म बिल विड्रॉल, व्हाटएवर, NRC. You need to be updated. Yes, it is understood everybody will not know everything, but you should know something about everything. So I will request you to kindly speak to Siddharth and find out कि कैसे उसने अपने आप को इस काबिल बनाया। Fantastic. I'm not saying this because you got recommended. Recommendation के बाद तो वैसे ही आपके भाव बढ़ जाते हैं। I'm saying because that's what I experienced. बोला नहीं, पर अंदर इधर लग रहा था ये बंदा निकलना चाहिए, पहले क्यों नहीं निकला? चलो इस बार निकल गया। So I will, especially service entry, I will want you to speak to him and find out how did it, the classes benefit him in terms of clarity, not in terms of false assurance कि हमारे पास आओ हर गधे को हम घोड़ा बना देते हैं। और वो हमारे पास नहीं, वो नागपुर होता है, दिल्ली होता है, चंडीगढ़ होता है, बड़े बड़े, हमसे नहीं होगा वो। हमसे क्या होगा? क्लैरिटी। सो आप भी अगर सिद्धार्थ की तरह एयरफोर्स के ऑफलाइन क्लासेस कॉम्पोजिट बैच में आना है तो 6 दिसंबर 2021 से नया बैच शुरू हो रहा है पुणे में। 6 दिसंबर 2021, अगर 6 में ना आ पाए तो 13 दिसंबर, अगर उसके बाद 28 दिसंबर एंड 27 दिसंबर। क्लैरिटी, 500% क्लैरिटी का वादा है। और आप में ताकत होनी चाहिए कि एसएसबी को सिर्फ एक कोचिंग के पर्सपेक्टिव से क्रैक एसएसबी और वो लड़कों के
और जो गॉड लोगों ने दिखाया इसके नज़रिए के बजाय एक बार ये भी देख लो कि तुम जो दिखा रहे हो क्या एसएसबी को वास्तव में वही चाहिए। सिक्के के दूसरे पहलू को देखना सीखो। नहीं होगा तो आपकी मर्जी है। क्लैरिटी, जब क्लैरिटी आएगा अपने आप आपको दिशा मिलना शुरू हो जाएगा। बिना क्लैरिटी के तुम कितनी भी मेहनत कर लो दिशाहीन रहोगे। सो अगर आपको रजिस्टर करना है 8275577650 पे व्हाट्सएप करो एंड आई शेयर यू द डिटेल्स। 6 December 2021 इज अ न्यू बैच एंड अगर पीजी चाहिए तो अगेन यू कैन वांट आई शेयर यू द नंबर ऑफ वन मिस्टर समाधान पाटिल विल गाइड यू अबाउट द पीजी। थोड़ा सा सोचो मेरी बातों को, तुम्हारे छटपटाने से नहीं बनेगा। एसएसबी मस्ट कंसिडर यू वर्दी ऑफ रिकमेंडेशन। उन्हें बेवकूफ़ बनाओगे तो कद्दू चाकू में गिरे या चाकू कद्दू में गिरे, कटता कद्दू है एंड कैंडिडेट यू आर द कद्दू। क्या समझ में मुझे बताना। सो वंस अगेन सिद्धार्थ कुमार एमसी को कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज टेक ए फीडबैक फ्रॉम हिम 7510191350 पे एंड आई होप these videos are bringing certain degree of clarity। और शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर दूँ ताकि धीरे धीरे आपका एनालिटिकल स्किल्स बढ़ जाए। अगर बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ता तो झुंझुना तो बजा ही सकते हो। सो मुझे ज़रूर बताना इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया। सिद्धार्थ से बात करके एक फीडबैक लो, खासकर सर्विस एंट्री, ऑल ACC PCSL एवरीबडी कैन स्पीक टू हिम एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड एंड अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ तो अपने आप आपका रिजल्ट जो है अलाइन होना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।